Hello everyone, this side Samriti here. Hope you are staying safe. In the last class, we have studied about the theories of cells, history of cell, different types of cells such as prokaryotic cell and eukaryotic cell, and the components of cells such as nucleus, and the components of nucleus such as nuclear membrane, nuclear plasm, chromatin material, nucleolus, and the cell wall and the plasma membrane. And in this class today we will discuss about the such as the cytoplasm. What is cytoplasm and the what are the organelles that are present in the cytoplasm and their functions. तो ये organelles हैं, ये जो components हैं, इनके क्या क्या functions हैं, हम उन्हें complete डिटेल में पढ़ेंगे. Let's start. Cytoplasm is the fluid content. As last class में हमने जो पढ़ा कि this is the cell and ये आपकी plasma membrane है and the that is the fluid jelly like substance is present is known as cytoplasm. Clear? Inside the plasma membrane it contains the many specialized cells organelles having the specific functions. इसके अंदर जो components है उसके खुद के अपने specific function है. हर एक organelle का अपना एक specific function होगा. Specific मतलब एक fixed function है कि उसको यही काम करना है. Clear? तो साइटोप्लाज्म में आपके पास दो तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है. फर्स्ट इज ऑर्गेनेलीज, सेकंड इज इंक्लूजन. द लिविंग कंपोनेंट्स आर नोन एज ऑर्गेनेलीज एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर नोन एज इंक्लूजन्स. ऑर्गेनेलीज, these are called as living or the protoplasmic structures, and the sum of the organelles which are visible under light microscope. कुछ organelles ऐसे हैं जो light microscope के अंदर दिखाई देते हैं. that is mitochondria, Golgi apparatus, plastids, centrosomes and the vacuoles. These and some of the organelles which are visible under the electron microscope such as endoplasmic reticulum, ribosomes, lysosomes, peroxisomes and microfilaments. All these organelles are present inside the cell, inside the plasma membrane in the cytoplasm. And what are inclusions? Inclusions are non-living and the deutoplasmic मतलब false plasmic structures हैं. ये क्या करते हैं? They reserved food materials such as the glycogen, granules, proteins and the fats etc. Clear? Then first function of साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है? साइटोप्लाज्म क्या करता है? स्टोर करता है इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स एंड द एंजाइम्स एंड द मेनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आल्सो अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं. क्लियर? द फर्स्ट ऑर्गेनेली इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. What is endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulums are present like a membrane bound tubes like a sheets. Clear? And there are two types of endoplasmic reticulum. First is the rough endoplasmic reticulum. Second is the smooth endoplasmic reticulum. And the short form is that is RER, rough endoplasmic reticulum. This is the smooth SER, smooth endoplasmic reticulum. There is a difference between the rough endoplasmic and the smooth. As name indicates, जैसा कि name बता रहा है, rough means the surface is rough. Clear? And the smooth, it means the surface is smooth. So इन दोनों के बीच में difference है, तो इन दोनों के functions के बीच में भी क्या होगा? Difference होगा. Clear? पढ़ते हैं हम आगे. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द आउटर सरफेस. दी स्मॉल extended structures are known as ribosomes. Ribosomes are present on the rough endoplasmic reticulum, so that the main function of rough endoplasmic reticulum is protein synthesis, because the ribosomes help in the synthesis of प्रोटीन. जहाँ राइबोसोम्स होंगे वहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होगी. तो राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो हम क्या कहेंगे? आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, वेयर इज प्रोटीन सिंथेसाइज्ड? यू कैन से दैट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड द वाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज रफ बिकॉज द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट देयर. क्लियर? तो जो आपके पेनक्रियाटिक और लीवर सेल्स हैं जहाँ प्रोटीन की बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होती है, वहाँ आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, जिसकी सरफेस क्या होगी? स्मूथ होगी. क्लियर? तो इट्स सरफेस इज स्मूथ, so called the smooth endoplasmic reticulum.
एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, क्या बनता है यहाँ पे, फैट्स मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। तो आपके पास क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि लिपिड्स एंड द फैट्स मॉलिक्यूल के सिंथेसिस कहाँ होती है, तो यू कैन से दैट ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। देन फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करके लेके जाता है, क्या, इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, डज इट फॉर्म्स द सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है सेल का सर्कुलेटरी सिस्टम कौन है, तो आपके पास आंसर आएगा दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इंट्रासेलुलर and intercellular? Two terms are there. First is there are two terms, intra and inter. For example, I can give you an example, like एक स्कूल है, एक स्कूल में आपके 6th क्लास के स्टूडेंट्स एंड 7th क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में क्या है, क्रिकेट का कंपटीशन है, दैट इज इंट्रा स्कूल। इंट्रा स्कूल, एक ही स्कूल में डिफरेंट क्लासेस के बीच में कंपटीशन, आप उसको क्या बोलोगे, इंट्रा स्कूल। अब यहाँ पे क्या था, इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर ही जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं उनके बीच जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड व्हाट इज इंटर, इंटर इज लाइक दो स्कूल्स डिफरेंट है, जैसे लाइक वन इज द GD गोएंका, सेकेंड इज द सेंट जोसेफ। अगर इन दो स्कूल के बीच में कंपटीशन है तब आप इससे क्या बोलोगे, इंटर स्कूल कंपटीशन। सेम अगर दो अलग अलग सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट होगा दैट इज इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट। क्लियर। देन आपके पास आ जाता है नेक्स्ट इज द सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती है। और जो आपके जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होते हैं ये एंजाइम का काम भी करते हैं और हॉर्मोन्स का भी काम करते हैं, इनसाइड द सेल के अंदर भी, एंड व्हेन द सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल, जब सेल से बाहर सिक्रीट हो जाते हैं या सेल के अंदर, ये प्रोटीन्स क्या काम करेंगे, इट्स एज एंजाइम एंड द हॉर्मोन्स। देन लिपिड सिंथेसिस, इसमें हम आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपको लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द सपोर्ट, इसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये साइटोप्लाज्म को क्या करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर है। एंड गिविंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, सो इट इज आल्सो नोन एज साइटोस्केलेटन। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि साइटोस्केलेटन कौन है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। यूकैरियोटिक सेल्स आर द दो सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्लियर। एक्सेप्ट किसको छोड़कर, मैच्योर मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर। एंड इट इज लैकिंग इन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लास्ट लेक्चर सुन सकते हैं। गोल्गी अपरेटस क्या होते हैं, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। ये क्या होते हैं, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन्स होती हैं और यहाँ पे ऐसे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वेसिकल्स किस में हेल्प करते हैं, वेसिकल्स इज लाइक अ पॉली बैग, जो पॉलिथीन आते हैं ना, लाइक जिनके अंदर खाली कैविटीज होती है, हम सामान भर सकते हैं, कुछ भी कैरी करके ले जा सकते हैं। तो जो ये आपका गोल्गी बॉडीज हैं, इन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, थैलीज होते हैं, पॉलीथीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एंड एक दूसरे के पैरेलल में प्रेजेंट है, पैरेलल स्टैक में, एक लाइन में प्रेजेंट है। इन्हें क्या बोलते हैं, इसे हम सिस्टर्न्स कहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्गी अपरेटस। क्लियर। एंड ये जो आपका गोल्गी बॉडीज है ये किसके साथ प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ प्रेजेंट होता है। क्लियर। एंड गोल्गी अपरेटस इज द सिक्रीटरी ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है हु इज द सिक्रीटरी ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, आपका आंसर आएगा दैट इज गोल्गी अपरेटस और गोल्गी बॉडीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वेसिकल्स प्रेजेंट है जो क्या काम करेंगे, सिक्रीशंस में हेल्प करेंगे। देन द फंक्शंस ऑफ गोल्गी अपरेटस, फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या आएगा, इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स। तो लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स के सिंथेसिस कहाँ होती है, गोल्गी अपरेटस में। क्लियर। एंड कुछ केसेस में क्या होता है, आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर बन सकती है फ्रॉम अ सिंपल शुगर इन अ गोल्गी बॉडीज। क्लियर। एंड इट पैकेज द मटेरियल,
synthesized in the endoplasmic reticulum and dispatched, छोड़ देता है किसको, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट. इट मीन्स आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके प्रोटीन और जो फैट्स बने थे उनकी पैकिंग कौन करेगा, उसको डिस्पैच कौन करेगा, तो उसमें कौन हेल्प करता है, आपका गोल्गी अपरेटस. क्लियर. Next is the lysosomes. Lysosomes, as name indicates, these are enzymes. These are membrane bound sacs. ये membrane bound sac मतलब खाली कैविटी. membrane bound क्या होते हैं, sacs मतलब खाली कैविटी filled with the digestive enzyme मतलब ऐसे एंजाइम जो किस में हेल्प करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे. क्लियर. तो आपके पास फंक्शंस आ जाते हैं. फर्स्ट, दे आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर ही डाइजेशन में हेल्प करते हैं किसकी, फूड पार्टिकल्स की, इसलिए इन्हें डाइजेस्टिव बैग्स कहते हैं. आपके पास क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है. फर्स्ट वन कि नेम द डाइजेस्टिव बैग ऑफ द इन योर बॉडी, दैट इज द लाइसोसोम. सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग्स क्यों कहते हैं, बिकॉज लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स. क्लियर. नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट क्या है कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं. सुसाइड कर लेना, खुद को मार देना, ऐसा कब होता है, जब लाइसोसोम की खुद की सेल मेम्ब्रेन, जो उसके लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है, जब वो रप्चर हो जाती है तो लाइसोसोम्स अपने खुद के सेल को ही, अपनी खुद ही सेल को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं. क्लियर. जैसा कि क्या लिखा है, दीज आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज इफ देयर मेम्ब्रेन गेट रप्चर मतलब टूट जाती है, देन द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, तो जो एंजाइम्स है वो अपने खुद के ही सेल को खा लेते हैं. तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है विच वन इज द सुसाइडल बैग, तो आपका एग्जाम आंसर आएगा दैट इज द लाइसोसोम्स एंड द व्हाई द लाइसोसोम्स इज नोन एज सुसाइडल बैग्स. क्लियर. नेक्स्ट, the lysosomes helps in the destruction of foreign particles such as bacteria inside the cell. जब कोई बैक्टीरिया बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उस फॉरेन पार्टिकल, क्योंकि जो बाहर से आएगा हमारी बॉडी के लिए दैट इज द फॉरेन, है ना, फॉरेन पार्टिकल. तो जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो लाइसोसोम्स उसको क्या करते थे, डिस्ट्रक्ट, किल कर देते हैं. इसलिए हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. एंड लाइसोसोम्स आर नोन एज हाउसकीपर क्यों कहा जाता है, जो घर की रक्षा करेगा, रखवाली करेगा, बिकॉज जो ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन रिमूविंग एज्ड डेड सेलुलर ऑर्गेनेलीज बाय डाइजेस्टिंग देम. जो सेल के अंदर एज्ड और डेड ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करके रिमूव कर देते हैं. दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज हाउसकीपर. तो आपके पास क्वेश्चन आता है, तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, लाइसोसोम्स को डाइजेस्टिव बैग क्यों कहते हैं, लाइसोसोम्स को हाउसकीपर क्यों कहा जाता है, और लाइसोसोम प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं. तो आपके पास यहाँ पे चार तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं. क्लियर. इट इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस, मतलब जहाँ एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, जहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी. तो एनर्जी कहाँ बनती है, पावर हाउस कहाँ है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है. दिस इज द टाइप ऑफ अ ऑर्गेनेली दैट इज प्रेजेंट इन अ सेल. क्लियर. तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर में 2 मेम्ब्रेनस है. हमने ऐसे न्यूक्लियस पढ़ा था जिसकी 2 मेम्ब्रेन होती है. एज सच माइटोकॉन्ड्रिया की भी क्या होती है, 2 मेम्ब्रेन्स होती है. दैट फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन. एंड सेकेंड मेम्ब्रेन में क्या होता है, अंदर की तरफ फोल्ड्स होते हैं. क्लियर. लाइक दिस, अंदर की तरफ क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं. तो जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज स्मूथ एंड द पोरस. पोरस मतलब पोर्स होंगे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल. एंड इन द सेकेंड, द इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, अंदर की तरफ आपके पास फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं. इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टाई. दैट फोल्ड्स आर नोन एज क्रिस्टाई. अब क्रिस्टाई क्या करेंगे, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं. लाइक दिस, आपके पास एक मेम्ब्रेन ये है, एक मेम्ब्रेन आपके पास ये है, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर
टू दिस। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं कौन? क्रिस्टेई। क्रिस्टेज आर द इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स। क्लियर? आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स का क्या बेनिफिट है, तो क्या होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। क्लियर? देन माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। किसकी? फूड की ऑक्सीडेशन करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है, फूड की ऑक्सीडेशन, मतलब जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जिसमें आपकी एनर्जी एटीपी बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्लियर? तो आपका ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड एज अ एटीपी के फॉर्म में जो स्टोर रहती है। क्लियर? एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द एनर्जी करेंसी of the cell, then you can say that adenosine triphosphate, that is ATP. क्लियर? एंड माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, डीएनए डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, एंड खुद का ही राइबोसोम्स होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जिसका खुद का ही डीएनए होता है, खुद का ही राइबोसोम्स होता है, नेम दैट वन। तो आपके पास क्या आएगा आपका आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। या ऐसी ऑर्गेनेली जो अपने प्रोटीन खुद से सिंथेसाइज करती है, वो कौन सी ऑर्गेनेली है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होगा? इट इज द सेंटर ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन एंड सेंटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकेंड, जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई है अब वो क्या काम करेगी? वो हेल्प करेगी इंपॉर्टेंट वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में, लाइक सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड उनके ट्रांसपोर्ट में एंड उनके मैकेनिकल वर्क में। क्लियर? नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज द प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में। एंड द प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना में, दे आर एब्सेंट इन animal cell, and these are the largest cell organelle of the cytoplasm in the plant cell. plant cell की सबसे largest organelle कौन है? plastids. तो आपके पास two types of plastid है. first is the leucoplast, second is the chromo. leuco means white, leuco means white or a colorless, and chromo means colored. clear है? तो ल्यूकोप्लास्ट आपका क्या काम करेगा? ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा? आपका स्टोर करेगा the food of the plant in the form of starch, proteins and fats. मतलब ल्यूकोप्लास्ट जो खाना है उसको स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स की फॉर्म में स्टोर करता है। क्लियर? एंड क्रोमो, क्रोमो मतलब कलरफुल। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ chromoplast. Clear? That is a green color pigment. Chlorophyll in the chloroplast is present in the plant cell that helps in the photosynthesis. Clear? इसके अलावा क्रोमो मतलब कलरफुल। ठीक है? तो क्रोमोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? दिस इज द क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? एनिमल सेल बॉडी में होते हैं। दीज आर लाई नियर द न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। इसमें 2 डार्क स्टेनिंग ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल्स। द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम इज सेल डिवीजन। तो ये क्वेश्चन डैम श्योर ही आता है कि सेल डिवीजन के लिए कौन सी ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज द सेंट्रोसोम। क्लियर? नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, राउंड बॉडीज होती हैं जो किसकी बनी होती हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड की एंड द प्रोटीन्स की। फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। राइबोसोम्स आर द साइट्स, मतलब साइट प्रोवाइड करता है, एक जगह प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प कर रहा है? राइबोसोम्स। नेक्स्ट वन इज द प्रोक्सिसोम्स। प्रोक्सिसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किडनी एंड लीवर में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोक्सिसोम में आपके पास 2 तरह के एंजाइम होते हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीडेज, सेकंड वन इज कैटालेज। तो आपका ऑक्सीडेज एंड कैटालेज में क्या डिफरेंस है? मतलब ऑक्सीडेज क्या करता है? पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करने वाला एंजाइम है, एंड द कैटालेज क्या है? पेरोक्साइड को डिस्ट्रॉय मतलब तोड़ने वाला एंजाइम है।
तो आपके पास फंक्शंस ऑफ प्रोक्सिसोम्स क्या आ जाएंगे? दे टेक पार्ट इन लिपिड मेटाबॉलिज्म में कौन हेल्प करता है? प्रोक्सिसोम्स. एंड सम ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस आल्सो अकर्स विद द हेल्प ऑफ प्रोक्सिसोम्स. क्लियर? देन द वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत बड़ी खाली स्पेस. ठीक है, बहुत बड़ा खाली स्पेस लाइक अ पोली बैग. वैक्यूल्स स्टोरेज सैक जिन्हें हम बोल सकते हैं, जो स्टोर करने के लिए सैक्स है, खाली कैविटीज हैं. कैविटीज लाइक मतलब कुछ डिप में जिसमें आप कुछ स्टोर कर सकते हो. क्लियर? फॉर द सॉलिड एंड द लिक्विड कंटेंट्स. वैक्यूल्स आपके स्मॉल साइज होते हैं इन द एनिमल, जबकि आपके प्लांट सेल में क्या होते हैं? वेरी लार्ज वैक्यूल्स, बड़े साइज के वैक्यूल्स होते हैं. क्लियर? देन फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या काम करते हैं? एनिमल सेल में वैक्यूल्स मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, वाटर के बैलेंस को मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मो रेगुलेशन. तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है ऑस्मो रेगुलेशन में कौन हेल्प कर रहा है? दैट इज वैक्यूल्स. क्लियर? एंड इन प्लांट सेल क्या प्रोवाइड करते हैं? टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं. क्लियर? एंड दे स्टोर मेटाबॉलिक वेस्ट इन अ प्लांट सेल. जो प्लांट सेल का मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कहाँ स्टोर होता है? वैक्यूल्स में. एंड द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल हैं उन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा. द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम दे हैव द कंज्यूम. तो अमीबा में खाना कहाँ स्टोर होता है? इन द फूड वैक्यूल. देन आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? ये मॉर्फोलॉजिकली बहुत सिंपल सेल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं. क्लियर? प्रोकैरियोट्स क्या होंगे? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स. एग्जांपल द बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. तो इसकी क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दे लैक अ डेफिनेट, इनमें न्यूक्लियर सब्सटेंट होता है ना. न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. हम पहले पढ़ चुके हैं इन द पार्ट 1 कि न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियड. वहां पे क्या होगा? कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होंगे. आप उसे क्या बोलोगे? न्यूक्लियोइड. तो इसमें आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस आर absent. Nucleolus, as we already discussed, are made up of RNA and proteins. Clear? तो जितने भी membrane bound organelles हैं such as the plastid, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, centrioles, all are absent. तो आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोकैरियोट्स में आपके पास ऑप्शंस में आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती. तो यू हैव टू लर्न दिस. यूकैरियोटिक सेल दोज पजेस वेल ऑर्गेनाइज, इनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं. एनिमल एंड प्लांट सेल. क्लियर? एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एंड द सेल बाउंड ऑर्गेनेलीज सच एज प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक एंड गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट. क्लियर? इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. Even we will discuss some questions and some queries, and you can also comment in the comment box if you have any query about this. Thanks for watching my video. Please like, comment and subscribe. Thank you.